Welcome children. Here is a story for class 3. The story name is Jadav and the Tree Place. Written by Vinayak Verma. It is a story about a man whose name is Jadav Payeng, lives in Assam, and he is also known as the Forest Man of India. Let's start reading story and know why this man known as Forest Man of India. You know, reading is fun. It enhances our oral capacity and gives us more vocabulary and enjoyment. So I wish you all must read the story first. Let's start. One day, 16-year-old Jadav Payeng was walking along the banks of the Brahmaputra. He reached a big empty place with no trees. It was hot and dry. The sand was powdery and striped. Striped sand? How could sand be striped? Jadav went closer. The ground was covered with snakes. The flood had brought them to the banks. The snakes did not hiss or move or try to bite Jadav. Poor snakes. They had died of the heat. If only they had some shade to lie in. If only this no tree place had some trees in it, thought Jadav. The dead snakes made him very sad. He wanted to do something so that no more animals would die like this. He ran back to his village and collected all the bamboo shoot he could carry in his bag. एक दिन की बात है, एक 16 साल का लड़का जो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे टहल रहा था और टहलते टहलते वो एक बहुत बड़े खाली जगह में पहुंच गया जहां कोई भी पेड़ नहीं था। वो जगह बहुत ही गर्म और सूखा था। सारे बालू पाउडर की तरह दिख रहे थे और धारीदार दिख रहे थे। धारीदार बालू ये सोच के ही उसके मन में प्रश्न जगा और वो उस बालू के पास गया। जाकर देखता क्या है कि वहाँ पे बहुत सारे स्नेक्स जो नदी के बाढ़ द्वारा लाए गए थे पड़े हुए हैं, जो धाड़ियों जैसे दिख रहे थे दूर से। जब वो पास गया तो वो स्नेक्स न हिल रहे थे, ना उसे काटने की कोशिश की और ना ही फुफकार रहे थे। वे सारे मर चुके थे गर्मी के कारण। ये जगह इतना सुनसान बिना पेड़ वाला जगह होने के कारण ये सारे जानवर मर चुके हैं। ये सोच के ही जादव को बहुत दुख हुआ। वो सोचने लगा कि काश यहाँ पे ऐसा कोई जगह होता जहाँ पेड़ पौधे होते तो ऐसे कोई एनिमल मरता नहीं। ये सोचते ही वो गांव की तरफ भागा और अपने बैग में जितना हो सका बैम्बू शूट्स को वो ले आया। मोस्ट प्लांट्स वुडंट ग्रो इन द हॉट सैंड बट बैम्बू वुड। असल में बालू में कोई और पौधा नहीं उग सकता था, लेकिन बांस का पौधा उग सकता था। Jadav brought the shoot to the no tree place and started planting them everywhere. It was hard work in the hot sun and it took years. The river grew thin one summer and flooded the next, sometimes bringing more sand and sometimes taking it away. Heavy rains came and went, but Jadav kept planting trees. The bamboo grew slowly. As it grew, it brought shade, and the shade brought insects. The insects burrowed into the ground, and the soil under the bamboo trees began to change. Over the years, the dry and the white soil became rich brown soil. Jadav was no longer sad, but he wasn't happy either. He looked around his small group of bamboo trees and thought, a few tree places nice, I know, but how wonderful it would be if there were a many tree places. So Jadav went back to his village and began collecting many more seeds and young trees. Now that the few tree places had lovely brown soil, he could plant different kinds of trees. Jadav bought his new saplings and seeds to the few trees place and planted them all around. It was hard work, but his back hurt and it took many years. Villages became towns, the river became grey. But Jadav's insect friends helped till the soil, and his tall bamboos gave him shade and cooled the air, and Jadav kept planting. जादव ने जो शूट्स लाके उस नो ट्री प्लेस में लगाना शुरू किया, चारों तरफ
लगाना उसने शुरू किया, जो कि बहुत ही कठिन मेहनत का काम था, क्योंकि वहाँ के गर्म धूप में इसे करने में काफ़ी समय भी लग रहा था। इस दौरान इतने सालों में कभी नदी बढ़ जाती थी गर्मी में, कभी बाढ़ आते थे, कभी वो नदी पानी से बालू ला कर गिरा देते थे, तो कभी वहाँ की ज़मीन को काट कर ले जाते थे। कभी बहुत तेज़ बारिश होती, कभी वो भी चली जाती। इस सारे मौसम के साथ जादव ने अपना पेड़ रोपने का काम चलाते रहा, वो करते रहा। समय के साथ साथ वो सारे बांस के पौधे बड़े होते गए। फिर बड़े होने के बाद वो छांव देने लगे। छांव होते ही वहाँ इंसेक्ट्स आने लगे, और इंसेक्ट्स ज़मीन पर छोटे छोटे होल बनाकर उस मिट्टी के नीचे घर बनाकर रहने लगे, जिससे उस मिट्टी का रंग बदलने लगा। समय के साथ साथ वो सूखा, ड्राई, वाइट सॉइल अब वो एक बहुत ही अच्छा रिच ब्राउन सॉइल बन चुका था। पेड़ पौधे हो जाने से वो जगह अब थोड़ा बदल चुका था। अब जादव दुखी तो नहीं था, लेकिन बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं था। उसने चारों तरफ देखा और देखा कि ये बैम्बू ट्रीज़ छोटे छोटे ग्रुप में बने हुए हैं, और उसने सोचा ये थोड़े से पेड़ वाले जगह अच्छे तो हैं, लेकिन अगर कितना अच्छा होता अगर यहाँ पे बहुत सारे जंगल होते। ये सोचकर वो वापस अपने गांव गया। अब वहाँ जाकर उसने बहुत सारे सीड्स, यंग ट्रीज, सैपलिंग्स, ये सारी चीज़ें कलेक्ट करना शुरू किया। अब वो थोड़े पेड़ों वाले जगह को अच्छी मिट्टी भी थी, इसलिए वहाँ पे वो बहुत अच्छे पौधे, तरह तरह के पौधे भी लगा सकता था। जादव यही सोच के अपने गांव से नए सैपलिंग्स और सीड लाना शुरू किया, और उस फ्यू ट्री प्लेस में अब हर तरह के पौधों को लगाना लगा। ये भी बहुत मेहनत वाला काम था। उसकी पीठ दुख जाते थे, समय बीतता जा रहा था, गांव शहर में बदल गए थे, नदी बूढ़ा हो चुका था, पेड़ वाला जगह जो खाली ज़मीन था वो अब हरे भरे दिखने लगे थे। समय में बहुत सारे बदलाव हुए, लेकिन एक चीज़ जो उसका साथ निभाता रहा वो उसके इंसेक्ट्स फ्रेंड थे, जो लगातार वहाँ की मिट्टी को बदल बदल के अच्छी मिट्टी में बदल रहे थे। इससे वो बैम्बू ट्रीज़ भी बड़े होकर शेड देने लगे, ठंडी हवा बहने लगी, और जादव ने भी अपना पेड़ लगाने का काम जारी रखा। दिस इज़ फॉर टुडे। द रेस्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी विल रीड टुमारो, बट related to these two pages, here is a worksheet for you. If you go through the story and understand it, you will try to solve this worksheet. I will give the answer later up, answer sheet, and you will check it with it. That's for today. Good day.